नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। आप सभी का बिजनेस स्ट्रीट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल बिजनेस स्ट्रीट में सॉलिड वुडन फ्लोरिंग का बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा खास पेड़ पौधों के लिए भी डेवलप किए जा रहे हैं नए नए वैक्सीन्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे बिजनेस स्ट्रीट की। भारत में अब पौधों के लिए भी वैक्सीनेशंस उपलब्ध हो गए हैं और ये कृषि जगत में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुणे में स्थित एक कृषि वैज्ञानिक की लैब, यहाँ पौधों के लिए वैक्सीन विकसित किए जा रहे हैं। ये वैक्सीन पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और करीब करीब उनको बीमारी मुक्त कर देता है। When you talk about vaccines for human beings, you take an injection and you are protected from the disease. In the same way, we have biological sprays. So you give spray on plant leaf and it will induce certain biochemical reactions inside a cell so that the pathogen or the organism which causes disease cannot go inside a plant and cause a disease. So this is the preventive treatment for plants which can protect diseases, which can protect plants from all type of diseases. इस वैक्सीन को पौधों पर छिड़का जाता है और फिर ये पौधे के भीतर जाकर उन्हें रोग प्रतिरोधी बनाते हैं। इतना ही नहीं, उनके भीतर गुड बैक्टीरिया को भी पोषित करते हैं। We have developed a patented process by which we convert a polysaccharide into a soluble and bioactive form. So when I say polysaccharide, it is 100% biological, non-toxic, edible. And when you spray this product on plant leaves, it prevents entry for pathogens inside a plant. So it prevents a disease. That is first type of vaccine. Second type of vaccine is when you use first vaccine, you can get rid of toxic chemicals. So lot of beneficial bacteria can grow on plant leaves. So these beneficial bacteria which can grow inside a plant leaf give disease resistance against for plants. This is the second type of vaccine for plants. आंकड़ों के अनुसार कीट और बीमारियों के कारण लाखों टन अनाज, फल और सब्जियों का नुकसान प्रति साल होता है, लेकिन इस वैक्सीनेशन से फसलों को होने वाले इस नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। Farmers all over the globe today lose up to 90% of their crop because of disease. This happens because the weather is bad, they cannot use chemicals, or they use chemicals only after the disease has come. So today the technology available to farmers is only for curing a disease and the losses are tremendous. We know prevention is better than cure and we are offering a preventive product. So farmers can minimize their losses by using a product which is non-toxic. इस वैक्सीन पर कीटनाशक दवाओं की अपेक्षा काफी कम खर्च आता है। Right now we have commercialized products only on pomegranate. So for pomegranate we have given names as Zansil and Olisil, because these products they prevent a disease called by Xanthomonas. So it is called as Zansil, a product which seals against Xanthomonas. For all crops we have products which protect a root, which is called as root guard, a product which protects leaf, which is called as leaf guard. माना जा रहा है कि ये वैक्सीन भारतीय कृषि जगत में एक क्रांति ले आएगी।
सॉलिड वुडन फ्लोरिंग का बाजार अब तेजी से बढ़ रहा है। ये धीरे धीरे बेहद लोकप्रिय हो रहा है। बाजार में कई तरह के डिजाइन्स मिल रहे हैं और इनको लगाने की टेक्नोलॉजी भी काफी उन्नत हो गई है। भारतीय फर्श की तस्वीर बदल रही है। लोगों को सॉलिड वुडन फ्लोरिंग ज्यादा भाने लगी है। ये हुआ है सॉलिड वुडन फ्लोरिंग के मटेरियल में आने वाले बदलाव की वजह से। ये देखिए कितने पैटर्न्स की वुडन फ्लोरिंग यहां दिखाई दे रही हैं। ये पैटर्न्स परमानेंट हैं। हम नेचुरल वुड लेकर और इसको अमोनिया स्टेन देते हैं। ये इनके वेन्स तक जाता है। वुड में वेन्स होती हैं, उन वेन्स तक हम इसको पहुंचाते हैं और ये फेड नहीं होता किसी भी हालत में, क्योंकि हम इसकी अमोनिया के थ्रू स्टेनिंग करते हैं और वेन्स में जाता है, तो ये स्टेन होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात है, जो हार्डवुड होता है वो होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस मीन्स थिकनेस थ्रू एंड थ्रू एक ही ग्रेन वर्क होता है, उसमें ग्रेन में कोई चेंज नहीं आती। हमारे यहाँ कम से कम 25-30 कलर्स अवेलेबल हैं। देखिए, हम इस वक्त जो है ज़्यादा एम्फेसिस प्ले कर रहे हैं ओक के ऊपर। ओक में आपके डिफरेंट स्टेन्स आ जाते हैं, कई सारे स्टेन्स लेते हैं। ओक, बीच, ऐश और मेपल। मेपल ज़्यादातर हम स्पोर्ट्स फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमारी स्पोर्ट्स फ्लोरिंग भी आती है और हमारी डांस फ्लोर्स भी आती हैं। मेपल उसमें ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और हम बीच भी उसमें यूज़ करते हैं। बीच और मेपल ज़्यादातर स्पोर्ट्स में होता है, लेकिन बीच को हम स्टेन करके भी घरों में लगा रहे हैं और बाकी जगहों पे भी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्हें लगाने के तरीके में भी बहुत बदलाव आ गया है, जिससे ये बरसात के दिनों में केले जैसा शेप नहीं लेते। इंस्टॉलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वुडन फ्लोरिंग में। अगर आप इंस्टॉलेशन उसकी ठीक करते हैं, जैसे आपने इंस्टॉल किया उसको, तो नीचे से क्लिप सिस्टम यूज़ किया। क्लिप कर्वेचर टाइप की क्लिप होती है, तो अगर एक्सपेंशन होती है तो वो उसको दबा देती है। उसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन लिमिट में रहती है। इंस्टॉलेशन के वक्त जहाँ जहाँ पे भी दो जगहों पे अगर हमने जॉइन करना होता है, तो हम सिलिकॉन का इंजेक्शन लगा देते हैं चारों तरफ से, ताकि अगर पानी आए भी तो सिलिकॉन उसको बाहर फेंक दे। तो पानी का किसी भी हालत में उसका आना पॉसिबल नहीं होता। और नीचे से हम फोम और पॉलीथीन लगाते हैं, ताकि नीचे से भी अगर मॉइस्चर हो तो उसको कंटेन कर ले वो। उसके ऊपर फिर क्लिप्स लगा के हम प्लैंक्स को ज्वाइन करते हैं। वुडन फ्लोरिंग पहले की अपेक्षा सस्ती भी हो गई है। सामान्यतः इसकी कीमत 400 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होती है। लेकिन सवाल उठता है कि वुडन फ्लोरिंग खरीदते समय इसे कैसे परखें। जहाँ थिकनेस है साइड्स पे, एक होता है मॉइस्चर मीटर, आप उसको अंदर डाल दीजिए। उसके अंदर 2 पिन्स होती हैं उसकी, आप उसके अंदर डालिए, आपको उसका मॉइस्चर कंटेंट नज़र आ जाएगा। अगर आप मॉइस्चर बिटवीन 8 to 12% देख रहे हो, वेरी कर रहा है, तो ठीक है, आप ले लीजिए। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो वो आपके काम का नहीं है। इतना ही नहीं, इसे लगाते समय भी कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जहाँ पे भी फ्लोर पे लगा रहे हैं वो साफ ड्राई जगह हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग जल्दी जल्दी में गीली जगह पे लगा लेते हैं, जो कि गलत होता है। और कभी कभी क्या करते हैं, अपना काम ख़त्म करने के लिए हीटर लगा देते हैं और बोलते हैं हीटर से सारा जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, तो आप फ्लोरिंग लगा दीजिए। सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है। आपकी जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको फ्लोरिंग को जब लगाएंगे तो नीचे से हम पॉलीथीन और ये सब लगाते हैं, पॉलीथीन और फोम लगाते हैं, और फिर हम क्लिप से उसकी फिक्सिंग करते हैं, जगह छोड़ देते हैं एक्सपेंशन के लिए 5-5 mm की चारों तरफ से। ये तो जनरली एक तरीके होते हैं काम करने के। और आगे उसकी आफ्टर सेल सर्विस ये होती है कि
आपको सिंपल एक गीला पोछा लगाना है और कुछ आपको इसके लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं।